All right, guys, very good evening. And we are going to start the next topic, and that is economic impact of British rule on India. ये हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जहाँ पे my aim is that I am trying to cover all the topics which are important from the modern history perspective for the examination of BBSC as well as other state examinations as well. ठीक है? So let's start with the topic economic impact of British rule on India. Indian administration हमारे ब्रिटिशर्स के हाथ में था and it was conducted in a manner which was obviously subserving the interests of England. अगर हम home charges की बात करें so home charges refer to the expenditure incurred in England by the Secretary of State on behalf of India. It includes dividend to the shareholders of the East India Company, interest on public debt raised abroad, civil and military charges, store purchases in England, etc. ठीक है? Interest and profit on private foreign capital were another important leakage from the national income system. Banking, insurance and shipping services की बात करें तो इंडिया को काफी huge payments करना पड़ता था. In British India, a term imperial preference was often used for the concessions granted to British imports in India. अब सोचो ब्रिटिश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पे हम उन्हें कंसेशन दे रहे हैं in the form of imperial preferences. According to this, almost nil charge was levied on these British imports. But वहीं पे जब इंडियन एक्सपोर्ट होता था तो बहुत heavy charge लगता था in Britain. Strong preference to invest in land property, by which the rich class of India during British rule proved detrimental for the development of industries as they were low on capital investments. 1793 में कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात है ये. परमानेंट सेटलमेंट वाज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इस्तमररी, जागीरदारी, मलगुजारी एंड बिश्वेदारी. ओके, नोट दिस डाउन. अब ये जो सिस्टम था इट वाज लॉन्च्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, Varanasi of UP and northern Karnataka. 19% of British India was under permanent settlement. अब एक न्यू सेक्शन ऑफ जमींदार्स अनाउंस किया गया एज लैंड ओनर्स जिन्हें प्रोवाइड करना था 10 out of 11 of the total revenue to company और बाकी का जो 1/11 of the total revenue था for their duties. अब परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार्स वर स्मॉल कैपिटलिस्ट्स. रियोटवाड़ी सिस्टम पे आते हैं. रियोटवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाय थॉमस म्यूनरो एंड अलेक्जेंडर रीड. कहाँ पे? इन बड़ा महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि एक अनदर टाइप ऑफ लैंड सेटलमेंट था. लेटर ऑन यही सिस्टम स्प्रेड हुआ टू मद्रास, some parts of Bombay, East Bengal, Assam and Coorg, which was modern Karnataka. अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये लॉर्ड्स थे, they were given the ownership and rights to occupy the lands and they were in return required to pay the revenue directly to the government. By this system, farmer became the owner of this land. Up total of 51% British Indian area was covered under this settlement. अब ये जो रेट ऑफ लैंड टैक्सेस थे इन दिस सिस्टम बहुत ही हाई थे एंड द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल रेंट वाज हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली. वहीं पे महलवारी सिस्टम के अंडर जो यूनिट था फॉर रेवेन्यू सेटलमेंट वो था द विलेज और द महल. अब ये जो विलेज लैंड था ये बिलोंग करता था टू द विलेज कम्युनिटी. ये जो कम्युनिटी था ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल था फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू.
ये सिस्टम प्रिवेल किया इन 30% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कवरिंग यूपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। अब ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ था फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, for which India did not even receive any adequate economic, commercial or material return, इसको डिस्क्राइब किया है नेशनल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स ने एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। यानी बिफोर 1813 company had a recurring surplus which accrued from profits from oppressive land revenue policy, profits from its trade resulting from monopolistic control over Indian markets, and third, extractions made by the company's officials. अब ये जो सरप्लस था ये यूज किया जाता था by the company as an investment, that is for making a purchase of exportable items in India and elsewhere. Against the exports of goods made out of this investment, India did not receive anything in return. और ये सिस्टम इसको खत्म किया गया by the Charter Act of 1813, important है। 1813 onwards, इकोनॉमिक ड्रेन ने एक नया फॉर्म लिया which was unrequited exports, यानी bearing a few exceptional years, एक favorable balance of trade नॉर्मल फीचर के रूप में हो गया था of our foreign trade till the outbreak of World War II. दादाभाई नारोजी ने डिस्क्राइब किया था the drain of wealth as the evil of all evils, important है, mark this down, and the main cause of Indian poverty. Dadabhai Naoroji was the first and most important propounder of the drain of wealth theory. Mark this as important, guys. अच्छा, जो भी मैं कह रही हूँ ना important, it means that it can be asked in the examination in any form. Match the following, true and false, which of them is correct, are all the statements correct, none of them, whatever. ठीक है? अब इन्होंने अपने आर्टिकल्स और बुक्स में England debt to India, note this down, poverty and un-British rule in India, very famous, the wants and means of India, and on the commerce of India, propound किया था इन सभी किताबों में drain of wealth theory को। रमेश चंद्र दत्त ने भी emphasize किया the drain of wealth theory। इन्होंने अपनी आर्टिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रपोज किया कि हाफ ऑफ एनुअल जीडीपी ऑफ इंडिया आउटफ्लो ही हुई जा रही है एवरी ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896 ने एक्सेप्ट किया द ड्रेन थ्योरी इन कैलकाटा सेशन और अनाउंस किया that the real cause of frequent famines and poverty of Indian nationals is the ongoing of drain of wealth for the previous 100 years. सैयद अहमद खान लॉयल थे टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल और इन्होंने बिलीव किया that the development of Muslim community तभी हो सकता है जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है। Now imagine ये मानसिकता कितनी डेडली साबित हुई इन द लॉन्ग रन। दादा भाई नारोजी ने along with W.C. बैनर्जी एस्टैब्लिश किया लंदन इंडियन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट, 1865 में, जिसने पॉपुलराइज किया द सिवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड द पेन ऑफ इंडियन नेशनल्स। दादा भाई नारोजी was the first Indian to be elected to the British House of Commons, very important, on the ticket of the Liberal Party in 1892. अब फटाफट से इसके MCQs पे आ जाते हैं। तो अगर हम colonial rule की बात करें in India, home charges were formed as an important part of the drain of wealth from India. अब इनमें से कौन से फंड्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं होम चार्जेस? तो केवल दो हैं, funds used to support the Indian office in London and funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India. Next question. अब ये जो staple commodities of export थे by the English East India Company from Bengal,
इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी ये क्या थे? तो ये थे हमारे कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। ऑलराइट, इंपीरियल प्रेफरेंस कहाँ पे अप्लाइड हुआ था? So it was applied to the special privileges on British imports in India. अभी just पढ़ा हमने, right? There was no independent development of industries in India during the British rule. क्यों? Because of the preference of the rich to invest in land. Poor को तो कोई opportunity ही नहीं. Economically, one of the results of the British rule in India in the 19th century क्या था? ये था commercialization of Indian agriculture. Acha, whenever I'm discussing these MCQs, so you guys have two options. Either you pause till the time I read the question, guess the answer at your end and confirm when I give the answer, और आप साथ ही साथ सुन सकते हो in the form of a revision sort of. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये है हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। किसने इंट्रोड्यूस किया था इस्तेमरारी सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। दूसरा, इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री। तो ये दोनों ही सही हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के करेक्ट एग्जाम्पल हैं। फटाफट से आ जाते हैं 9th वाले पे। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द लैंडलॉर्ड्स, अगेन जमींदार्स। 12th पे आ जाते हैं, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड कौन से ईयर में? 1793। अब ये जो टेंडेंसी था फॉर इंक्रीज लिटिगेशन, ये विजिबल था आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। So the reason for this normally traced to which of the following provisions? तो ये आप मुझे बताओगे in the comment section. Okay? Now, 15th. अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें 1793, so जमींदार्स were required to issue pattas to the farmers, which were not issued by the जमींदार्स। तो रीजन क्या था? रीजन था कि कोई ऑफिशियल्स ही नहीं थे टू चेक अपॉन द जमींदार्स। 16 पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? तो वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। अगर हम 17th की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट एंड रियोटवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली कहाँ पे? बंगाल एंड मद्रास। 1885 में rights of tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act. Sir Thomas Munro associated थे with the land revenue settlement, कौन से? वो था रियोटवारी settlement। 20th पे आ जाते हैं, कौन associated थे with the रियोटवारी settlement of Madras? Munro। किसने स्टार्ट किया था रियोटवारी सिस्टम? थॉमस म्यूनरो। The Ryotwari settlement was introduced by the British कब? In the Madras and Bombay Presidency। इंग्लिश ने इंट्रोड्यूस किया था रियोतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी। In British system, रियोतवाड़ी land revenue collection was prevalent in, you're going to tell me, अभी हमने just पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं, अगर हम रियोटवाड़ी सिस्टम की बात करें, रियोटवाड़ी सेटलमेंट की, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो तीनों ही करेक्ट हैं। रेंट पे हुआ करता था डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट gave pattas to the riots and riots bolo, whatever it is, and the lands were surveyed and assessed before being taxed। 26 पे आते हैं, अगर हम with the reference to the history of India, हमें बताना है इनमें से कौन से पेयर्स करेक्ट हैं।
तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है। दूसरा है बनियान विच वाज इंडियन agent of the East India Company, and Mirasidar which was designated revenue payer to the state. 30th पे आते हैं डी, नो सॉरी 27 के बाद 28 पे आएंगे पहले। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन करता है ड्रेन थ्योरी एज propounded बाय दादा भाई नारोजी? तो सेकंड वाला है that a part of Indians national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India absolutely did not get any material returns. 29th, ये आप मुझे बताओगे, who is the exponent of the theory of economic drain of India? ठीक है। 30th, अगर हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही करेक्ट है कि भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था 1813 में। अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्रीवेट कर दिया था प्रोसेस को। फिर आ जाते हैं which of the following were economic critique or critiques of colonialism in India? तो तीनों ही थे, दादा भाई नारोजी हमारे ड्रेन थ्योरी के लिए, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड आर सी दत्त। 33 पे आते हैं who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नारोजी? सर सैयद अहमद खान। क्यों? क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। मुस्लिम्स बिलीव करते थे कि जब तक ब्रिटिश रूल है तब तक उनकी हुकूमत भी रहेगी, उनको वो इज्जत मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, वो रिस्पेक्ट मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड द ब्रिटिशर्स टू थ्राइव एंड सर्वाइव, है ना। 34 पे आते हैं किसने ऑथर किया था द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑब्वियसली दादा भाई नारोजी। किसने अपनी बुक में डिस्क्राइब किया द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? आप मुझे बताओगे, ऑब्वियसली दादा भाई नारोजी। ऑलराइट देन अब तो मैंने ही बता दिया, खैर लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज। हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें से करेक्ट है कि he had exposed the economic exploitation of India by the British. 37 पे आते हैं, again we have been given 2 statements और हमें बताना है क्या है ये, सही है गलत है, what it is. So generally India had a favorable balance of trade during the British rule, yes. The drain of wealth took the form of unrequired exports, correct. So दोनों ही सही हैं. Then coming to the question, all right. The last question, it says 37, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। 37 है, आई मीन 38 है, किसने कंसिडर किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिस्गस्टिंग इन इंडिया? ये अच्छा वर्ड है वैसे, है ना, स्ट्रेट अवे डिस्गस्टिंग ही बोल दिया। सो कार्ल मैक्स, ओके। What is the total percentage of central revenue spent on military force in British India? 40%, imagine. So this brings us to the end of this topic. आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि ये छोटा टॉपिक था, सो आई विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स हॉप ऑन टू दिस टॉपिक। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर 1856, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू रिप्लेस द ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस यानी मस्केट गन जो था with new and advanced Enfield rifle. Note this down. Dum Dum, Ambala and Sialkot को डिसाइड किया गया कि भाई यहां पे ट्राई करेंगे न्यू तरीके के गन्स। ये जो राइफल थी, अब इसमें क्या करना था कि इसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि अपर पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज को माउथ से बाइट करके तब ये ओपन होता था टू बी पुट टू यूज। अब जनवरी 1857 में रूमर स्प्रेड हो गए कि भाई कार्ट्रिज जो है वो कंटेन कर रहा है फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। अब आर्मी ऑफिसर्स ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन डिसमिस कर दिया रूमर्स को कि भाई ये तो फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट जो सोल्जर्स थे उन्होंने बिलीव किया
कि ये जो न्यू राइफल है ये एक तरीके का अटेम्प्ट है टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन्स बाय द ब्रिटिशर्स, और यही बना immediate reason for the revolt of 1857. Very, very important. 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर के सोल्जर्स थे उन्होंने भाई रिफ्यूज कर दिया कि हम ये फैट कंटेनिंग कार्ट्रिजेस को नहीं यूज करेंगे, और उनमें से जो मंगल पांडे थे इसी कारण से उन्होंने अटैक किया और सर्जेंट मेजर को मार दिया। ओके, बैरकपुर में। मेन रीजन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था? एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड जो ये आउटफ्लो हो रहा था, ये डिसेंट्स का, ग्रीवांसेस का ऑफ इंडियंस, ये ऑल ऑफ अ सडन जो था, इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक एन एक्सप्लोजन इन द वोल्केनो। मतलब वोल्केनो ऑलरेडी पाइल अप हो रहा था, बट वोल्केनो एकदम से फटा। अब एंग्लो इंडियन हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं कि सोल्जर्स डिसकंटेंटमेंट और ये जो फैट कंटेनिंग कार्ट्रिजेस था ये मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीजन था फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। बट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने प्रूव किया दैट दिस वाज जस्ट अ रीजन फॉलोड बाय सेवरल अदर रीजंस। क्या थे वो? कि भाई जो फैट कंटेनिंग कार्ट्रिजेस थे ये तो सिर्फ एक चिंगारी लगाई थी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक डिसकंटेंट जो चल रहा था उस समय अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उसमें बस एक ये चिंगारी लगी थी, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था 10 मई को। कहां से? मेरठ से, ठीक है, जहां पे थर्ड नेटिव इन्फेंट्री ने रिफ्यूज कर दिया था टू टच दीज न्यू कार्ट्रिजेस और ओपनली रिबेल पे उतर आए थे। इन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी थी ऑन दी ऑफिसर्स, ठीक है, अपने इनमेट्स को भी सेल से निकाल दिया था, मतलब छुड़ाया था, एंड दे फाइनली मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब इसमें से जो जनरल हेविट थे, ठीक है, जनरल ह्यूविट, इनके पास 2200 यूरोपियन सोल्जर्स थे, बट इन्होंने कोशिश नहीं करी टू स्टॉप द स्टॉर्म। ओके, रिवोल्टर्स ने कैप्चर करा दिल्ली ऑन 12 मई 1857 को। तो जो सिंबल ऑफ द 1857 रिवोल्ट है वो था लोटस एंड रोटी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रेड। खान बहादुर जो थे, जो फॉर्मर रूलर ऑफ रुहेलखंड थे, उन्होंने ये रिवोल्ट चलाया बरेली से, और इन्हें ही अपॉइंट किया गया था एज द वाइसरॉय बाय द मुगल किंग बहादुर शाह द सेकंड। अब रानी लक्ष्मीबाई पे आते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई was born on 19 नवंबर, ठीक है, एट गोलघर। 14 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई की शादी हो गई थी तो महाराजा गंगाधर राव, जो मर गए थे ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई एक विडो थी ऑफ द लास्ट मराठा किंग गंगाधर राव। जब गंगाधर राव मरे तो उन्होंने कोई अपना हेयर नहीं छोड़ा फॉर द थ्रोन, ठीक है। तो डेलाउजी ने बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मर्ज कर दिया झांसी को भी टू द ब्रिटिश एम्पायर कि भाई आपका कोई सगी औलाद तो है नहीं जो ऑक्यूपाई द थ्रोन, तो चल इसे भी एनेक्स करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि 4 जून 1857 में रिवोल्ट शुरू हो गया झांसी में अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि ये तो होना ही था। शी डाइड ऑन 17 जून, ठीक है, फाइटिंग जनरल ह्यूग हेनरी रोज। सो ऑन हर डेथ ह्यूग रोज ने कहा कि अमंग द इंडियन रेवोल्यूशनरीज द वुमेन लाइंग हियर इज द ओनली मैन। कितना प्राउड स्टेटमेंट की बात है ये कि आई मीन इसी से हम रानी लक्ष्मीबाई जी के स्ट्रेंथ और करेज और उनके वेलर के बारे में पता कर सकते हैं कि शी वाज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, ऑफ मेटल, ऑफ ग्रेट करेज, ठीक है। तभी कहा जाता है खूब लड़ी मर्दाना वो तो झांसी वाली रानी थी।
ठीक है। अब रिवोल्ट जो लखनऊ में हुआ वो किनके लीडरशिप के अंडर हुआ? बेगम हजरत महल ऑन 30th में। ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर किया था अपने माइनर सन बिजरिस कादिर को एज नवाब। ठीक है, जिसने सारे अफेयर्स ऑफ द लखनऊ को टेक ओवर कर लिया था। अब 21 मार्च 1858 में कैम्पबेल गुरखा रेजिमेंट की मदद से रीगेन किया लखनऊ को। अब जून 5 1857 को नाना साहिब ने डिक्लेयर किया पेशवा एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया इन कानपुर। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि जस्ट बिकॉज ही इज अ मराठा इज अ पेशवा तो समवेयर उधर नहीं, कानपुर से। ठीक है। ही वॉज हेल्प्ड अ लॉट बाय कमांडर इन चीफ तात्या तोप, जिन्हें एम्बेसडर ऑफ रिवोल्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या तोप क्या था? रामचंद्र पंडुरंग। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब मान सिंह के धोखाधड़ी के बाद कैप्चर कर लिया गया था बिकॉज ही हैड बिट्रेड हिम, राइट? सो ही वाज कैप्चर्ड व्हेन ही वाज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट। वहां से उन्हें लाया गया टू शिवपुरी वेयर अ कोर्ट ऑन 18th April sentenced him to be hanged till death, मतलब फांसी सुना दी। अब कुंवर सिंह पे आ जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स है गाइस। ठीक है। कुंवर सिंह ने रिवोल्ट चलाया फ्रॉम जगदीशपुर, बिहार। इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। ही वाज फ्रॉम शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, करेंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है। दीवान मनीराम दत्त की बात करें तो उन्होंने असम में डिक्लेयर किया था कंट पेशवर सिंह, द ग्रैंडसन ऑफ द लास्ट किंग, एज द किंग एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट। बट मनीराम दत्त के मरने के बाद, मतलब आफ्टर ही वाज कॉट एंड हैंग्ड फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑफ द रिवोल्ट। ठाकुर कुशल सिंह की बात करें ऑफ ओवा, इन्होंने डिफीट किया था द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह provided leadership to the revolt from Faizabad in 1857. ठीक है। काफी brutal enemy of Englishmen थे। He was native to Arcot of Tamil Nadu, but migrate कर गए थे to Faizabad. He asked all the different religious believers to stand as one against these English foreigners. देखो इन्होंने unity में believe किया था। ठीक है। To stand as one of these English foreigners and to wipe them out from India. ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि was a person who was filled with extraordinary bravery and immovable, strong determination, best soldier among all revolutionaries. तो कौन थे ये? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। A bounty of rupees 50,000 was on his head. सोचो कितने ताकतवर थे। मिर्जा गालिब की बात करें तो he saw the revolt of 1857 with his own eyes. He was born on 27 December 1797 in Agra and died in Delhi. ठीक है। शिंदियाज ऑफ ग्वालियर ने भी हेल्प किया था। अच्छा, हेल्प द ब्रिटिशर्स इन द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। माय गुडनेस। मिनिस्टर ऑफ ग्वालियर सर दिनकर राव was praised by European historians for his loyalty to English. ये देखिए जनाब। Minister of Hyderabad Salar Jung was also praised for his loyalty towards the British. तो मतलब उस समय भी कुछ ऐसे थे जो बेचारे अनभिज्ञ थे। They were unaware of the lurking danger towards our freedom and hence they were supporting the British. ठीक है। So जो ये revolt था, the revolt of 1857 was spread on a huge area and was fully supported by the public. But still, ये revolt was unable to bring the whole of India together. This revolt was unable to influence the southern, western and eastern parts of India. देखो यही आगे चल के कारण बनेगा कि why this first war of independence didn't turn out to be that fruitful. ठीक है। Shinde of Gwalior, Holkar of Indore, Nizam of Hyderabad, King of Jodhpur, Nawab of Bhopal, Sikh rulers of Sindh, Maharaja of Kashmir, and other kings
were actively helping the Britishers in suppressing the revolt. Very, very important fact, guys. अब सोचो, एक तरफ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो नाकू चने चबाने में लगे हुए हैं टू द ब्रिटिशर्स, और एक तरफ वही लॉट है, मतलब कोई दूसरा लॉट है जो एकजुट होकर ब्रिटिशर्स की ही मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी रिवोल्ट कैसे सक्सेसफुल होगा? When the parties are divided, when the interests are divided, when the goals are divided, right? So to these rulers, Governor General Canning ने कहा कि these rulers acted as barriers against the high and fast moving wave of seas, in the absence of which we would have washed out from India completely. यानी अगर ये ना होते तो हमारा तो सफाया ही हो जाता इंडिया से, ठीक है। The educated class, एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस कि educated class didn't show any interest in the revolt of 1857. ये बहुत दुख भरी बात है, इनका साथ अगर मिल जाता तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। तभी it turned out to be the major cause of the failure of this revolt. लॉर्ड कैनिंग की बात करें, so he was the governor general during the revolt of 1857. इन्होंने इलाहाबाद को अपना इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। Lord Canning was the last Governor General appointed by the company and the first Viceroy appointed by the British King. Important. अब जुडिशियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो कैनिंग लेके आए थे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसमें इन्होंने इस्टेब्लिश किया था हाई कोर्ट्स एट बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो कैनिंग ने पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856। सिपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 को कहा जाता है एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एज एन इंडियन म्यूटनी इन इंग्लैंड। सर सैयद अहमद खान ने अपने असबाब ए बगावत ए हिंद, जो कि पब्लिश हुआ था 1859 में, इसमें कहा R.C. Majumdar was appointed by the government of India to write on the revolt of 1857, but due to differences with the government committee, he rejected this proposal. मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। और इन्होंने उल्टा अपनी ही किताब पब्लिश करी, द सपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। आशी मजुमदार कहते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, that it is difficult to avoid the conclusion that the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence. All right. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 का? तो ये था क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, यानी 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में बाय लॉर्ड कैनिंग डिक्लेयर कर दिया गया था टू एंड द कंपनी रूल एंड पुटिंग द रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्राउन। क्राउन ने कहा बस अब हो गया तुम्हारा, द एंड, ठीक है। सो ये डेक्लेरेशन ने एक तरीके का बैन पुट किया ऑन फर्दर ब्रिटिश इंडिया एक्सपेंशन, no further interference in the religious matters of people, equal protection of law to be available to all, जैसा ब्रिटिश क्राउन ने कहा। So British stopped all further annexation of native states and kings were allowed to adopt. तो यानी वो जो doctrine of lapse था वो somewhere it took a back seat, ठीक है। फिर after the suppression of 1857 revolt, Peel Commission constitute किया गया for the reorganization of Indian Army by British government. So the commission divided the army on the basis of caste, religion, race, community, etc. The number of European soldiers को increase किया गया from 45,000 1857 to 65,000 by 1858. Indian troops को भी reduce कर दिया गया from 2,38,000 to 1,40,000. Ratio of European to Indian soldiers in Bengal was 1:2, whereas in Madras it was 1:3. अब revolt के बाद soldiers were recruited from Gorkha, Sikh, Punjab province. John Bennett Hearsay
was the commanding officer of Barakpur जब revolt of 1857 ब्रेक हुआ. ठीक है. विस्काउंट पामस्टन उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे. And his tenure as prime minister was from 1855 ठीक है to 1858 और फिर 59 से लेकर 65. So the revolt एक तो poorly organized था, कोई coordination नहीं था, कोई central leadership नहीं थी. Mutineers जो थे वो lack करते थे clear understanding of the colonial rule. मतलब अपनी ही धुन में ये एक रिवोल्ट था, बट कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इस कॉलोनियल रूल का क्या आगे इम्पैक्ट हो सकता है. ठीक है. कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था, कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी. There was no political perspective or societal alternatives. So the lack of unity among Indians proved detrimental for this revolt. Modern nationalism was not known to them at that time, which led to everyone fighting for their own interest and not for the nation. जनरल जॉन निकोलस की अगर हम बात करें तो ये he had died on 14 September 1857 trying to recapture Delhi. Sir Henry Lawrence, Major General Hardlock and General Neil they had died in Lucknow in 1857 revolt protecting British residency. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस वाज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन व्हिच द हिंदूज कंसर्न्स वर यूज्ड फॉर द रिवोल्ट एंड इट वाज ओनली अ सिपॉय म्यूटनी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉरेंस एंड सीले. ये एक तरीके का वॉर था बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन जैसा कि टी.आर. होम्स ने कहा. ओके. वी.डी. सावरकर ने अपनी बुक में कहा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. He said it was the first war of independence. ठीक है. The government historian on Indian independence movement was सुरेंद्र नाथ सेन जिन्होंने अपनी बुक 1857 was published in 1957. ठीक है. अब हम फटाफट से आ जाते हैं MCQs पे. तो ये न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्ट्रिजेस कब इंट्रोड्यूस किया हुआ इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी? दिसंबर 1856 में. फिर आ जाते हैं कौन सा ऐसा which was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious. तो इसमें आता है हमारा the inefficiency of the officers. मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? बैरकपुर में हुआ. मंगल पांडे ठीक है ये रिपीटेशन है. And he was a sepoy of 34th Bengal Native Infantry. किसको ये टाइटल मिला था? साहब आलम बहादुर भाई बहादुर शाह. तो बख्त खान को मिला था. ठीक है. 8 पे आ जाते हैं. मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट क्या था? पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था. फ्रॉम लाइक वेयर फ्रॉम द रेवोल्यूशन. ठीक है ये रेपिटेशन है. Then first event relating to the War of Independence of 1857 क्या था? Marching of sepoys to Delhi's Red Fort. Remember? ठीक है. उसके बाद सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्या था? वो था लोटस एंड रोटी. रिमेंबर? चपातीज. इनमें से कौन से फॉलोइंग सेंटर्स थे जहां पे अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रीकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश? इट वाज दिल्ली. देन आ जाते हैं बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, वाराणसी. कौन लीडर थे ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली? तो खान बहादुर थे. ठीक है. समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे सिचुएटेड है? ग्वालियर में सिचुएटेड है. इन मतलब रानी लक्ष्मीबाई का लास्ट बैटल किसके अगेंस्ट हुआ था? ह्यू ग्रोव्स. रिमेंबर जिन्होंने कहा था she was the only man amongst the other warriors. रिवोल्ट ऑफ 1857 जो लखनऊ में हुआ था, इट वाज लेड बाय बेगम ऑफ अवध. कौन थी वो? हजरत महल. राइट. The revolutionary woman who led the revolution
हजरत महल, ठीक है, रेपिटेशन है। देन आ जाते हैं, सो आई एम स्किपिंग द वंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, सो दैट यू कुड क्विकली फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो रिविजन हो जाता है, नो डाउट, बट लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू द इम्पोर्टेंट वंस। 22nd पे आ जाते हैं, तो मौलवी लियाकत अली वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड कहाँ पे इन द स्ट्रगल ऑफ 1857? फ्रॉम अवध, इमेजिन। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब कौन थे? तात्या तोप, जिनका असली नाम था रामचंद्र पंदुरंग। अजीमुल्ला खान एडवाइजर थे टू नाना साहिब। अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात, हाँ ये तांत्या तोप वाला कवर हो चुका है। देन लेट्स कम टू राम, ये हो गया। कुंवर सिंह बिहार से रिलेटेड है, तो कोई भी क्वेश्चन आए बिहार, ठीक है। किसने स्पीयर हेड किया था द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? तो कुंवर सिंह, ठीक है, अब तक तो याद ही हो गया होगा। देन माय गॉड, 5-6 बार पूछ रखा है कुंवर सिंह से रिलेटेड, पता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अब तक तो याद ही हो गया होगा। एनीवे, असम में कौन लीडर था 1857 रिवोल्ट के टाइम? सो दीवान मनीराम दत्ता, ठीक है। सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 15 जुलाई 1857 वाज जगदीशपुर, ठीक है। तो ये कुंवर सिंह जगदीशपुर के ही थे। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड, ठीक है। तो अगर किंग ऑफ जगदीशपुर पूछा जाए तो भी कुंवर सिंह ही होंगे। किसने डिफीट किया था द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा। इनमें से जयपुर इज नॉट अ सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये याद रखना। Sadat Khan had struggled against the Britishers in 1857. फाजिल मोहम्मद खान ने भोपाल से ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था, मतलब लीड किया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, याद रखना, बीपीएससी में आया है, ठीक है। कौन से ऐसे पोएट थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा था? तो मिर्जा गालिब। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब कहाँ पे था? आगरा था गाइस, याद रखना, आगरा, लखनऊ मत कर देना, आगरा। भगत सिंह का कोई लेना देना नहीं था विद रिवोल्ट ऑफ 1857, ये याद रखना। उधम सिंह का भी नहीं, क्योंकि ये दोनों वो थे ना संगी साथी। तो शिंद्याज और ग्वालियर ने भैया बड़ा सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, ये याद रखना, ठीक है। एजुकेटेड मिडिल क्लास, ऑफ कोर्स दे हैड रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये याद रखना है। साहूकार और लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बीपीएससी पर्सपेक्टिव एज वेल। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने नहीं रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चित्तौड़ was that particular territory which was not affected by the revolt of 1857. बिहार का कौन सा पार्ट था जो अनअफेक्टेड था विद रिवोल्ट ऑफ 1857? वो था मुंगेर,
Okay, this is an important fact. Then we have कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो लॉर्ड कैनिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये काफी बार आया है ये क्वेश्चन. ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे एट बैरकपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट? तो हियर से. किसने अपना इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था? लॉर्ड कैनिंग. उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पामस्टन थे. चर्चिल मत कर देना. ठीक है, पामस्टन. मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. देखो है वो सारे ही रीजंस, बट जो सबसे मेन कॉज है वो ये है लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी ये लैक ऑफ कॉमन लीडरशिप भी लिख सकते हैं, तो भी याद रखना दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट. ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन, तो ये सारे ही रीजंस हैं. ठीक है, लैक ऑफ यूनिटी नहीं, नेटिव किंग्स सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एज कंपेयर टू आवर सोल्जर्स. ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. अच्छा, लोकल राजपूत रूलर्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट वी नीड टू रिमेंबर. देन ये कर्नल लीगर वॉलेस गिब्स ये सब कोई भी रिलेटेड नहीं थे 1857 से. ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल हुआ टू सिक्योर फ्रीडम. यस, वी ऑल नो दैट. द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट. तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं. Who called the revolt of 1857 a conspiracy? Sir James Outram. अब ये important questions है दोनों. ठीक है, they have been asked in BPSC. Then किसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा था एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस? तो सावरकर थे. वही इकलौते जो ये मानते थे. फिर ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कौन थे? एस.एन. सेन. कौन से ऐसे फर्स्ट इंडियन थे टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857? सैयद अहमद खान. The so-called First National War of Independence was neither first nor national nor war, none other than R.C. Majumdar. ठीक है, then then let's come to the. So, who was the correspondent of the newspaper Times, published from London 1857, wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view. So, yeah, W.H. Russell. ठीक है. इनमें से बताना है कौन सा फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू. तो इट गिव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रोल इन इंडिया. यस, तभी तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि बस हो गया तुम्हारा, लेट मी टेक ओवर. ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. क्वीन विक्टोरिया ने कब डिक्लेयर किया था टेकिंग ओवर? तो ये था 1 नवंबर 1858. याद रखना है. इंडियंस वर assured of many things in the declaration by Queen Victoria. इनमें से क्या था? तो policy of annexation will be abandoned. No further annexations. Doctrine of lapse had also taken a back seat, remember? Then we have okay, Queen Victoria ki proclamation. ठीक है, we've gone through this question. So which one of the following commission is associated with the army reorganization after the suppression? तो Peel Commission. ठीक है. 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने रिक्रूट किया था सोल्जर्स फ्रॉम गुरखा, सिख्स एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ. देखा ना कितना जोश, कितना उत्साह, कितना जुनून था इनमें. तो चलो भाई अब यहीं से रिक्रूट करो. ठीक है. All right, this brings us to this topic of the revolt of 1857. I hope you guys understood. समझ में आया होगा. देखो, चाहे मुझे कोई सुन रहा हो, चाहे मुझे कोई देख रहा हो, it's going to help both the set of people.
ठीक है, सुनने से भी चीज़ें ध्यान में रहेंगी. If you're looking at the video, obviously you'll be able to simultaneously and correspondingly underline in your book as well, right? So अब आ जाते हैं फटाफट से हमारे अगले टॉपिक पे और वो रहेगा अदर सिविल अपराइजिंग्स. All right.